Hello students, I Krunal Parmar. Today's lecture for the class 11 science stream, chapter number 6 of physics subject, work, energy and power. Today is the lecture number 8 of this chapter. Now in today's lecture we discuss about elastic and non-elastic collision. Now this elastic and non-elastic collision, the collision is, you learned this collision in the class 9th science subject. Now in the collision, the next topic is elastic and inelastic collision. Now during the collision between the two objects, the total energy and the total linear momentum of the colliding body are conserved. ये आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट टोटल एनर्जी एंड टोटल linear momentum of the colliding body are conserved. Now how can we define this elastic collision and non-inelastic collision? If the total kinetic energy before and after the collision is the same, then the collision is termed as an elastic collision. कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद अगर जो बॉडी है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन. In the other word, in elastic collision, total kinetic energy of the colliding body is conserved. During many collision, the kinetic energy of colliding bodies is converted fully or partly into internal energy of the body. In such collision, the kinetic energy is not conserved. Then collision of this kind are known as inelastic collision. So what is the difference between elastic and inelastic collision? In elastic collision, kinetic energy is conserved. The kinetic energy before and after the collision is the same, and in inelastic collision, kinetic energy before and after the collision is not conserved or it is different. It is called as inelastic collision. It may be noted that total energy and total linear momentum are indeed conserved in both of the type of the collision. Now, for understanding of this concept, we take a figure. यहाँ पे एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है. यहाँ पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है. बिफोर कोलिजन जो बॉडी है वो m1 है, दूसरी जो बॉडी है वो m2 है. m1 बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v1 है. m2 बॉडी की जो बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है v2 है. आफ्टर कोलिजन उनका मास तो सेम ही रहेगा m1 m2, बट उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी v1 से v1 डैश और v2 से वो चेंज हो जाएगी v2 डैश. नाउ वी विल कंसिडर द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन फॉर फिगर A. Suppose a body of mass m1 moving with velocity v1 along with x-axis undergoes an elastic collision with a body of mass m2 moving with velocity v2 along x-axis. तो यहाँ पे क्या है, एक m1 मास है वो v1 वेलोसिटी से x डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, ओके, और m2 जो मास है वो x डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दोनों की जो मूवमेंट वो एक्स एक्सिस पे है. देयर फाइनल वेलोसिटी आर आफ्टर कोलिजन, देयर फाइनल वेलोसिटी आर v1 डैश एंड v2 डैश. देन एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 मीन्स व्हाट, बिफोर कोलिजन उसकी जो मास और वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश क्या है, आफ्टर कोलिजन उनकी जो मास एंड वेलोसिटी है वो. दैट्स वाई इन लेफ्ट साइड वी गेट द वैल्यू. यहाँ पे दोनों साइड से m1 कॉमन निकला, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2. ऑल्सो एज द कोलिजन इन इलास्टिक वी नो दैट, यहाँ पे पहले हमने बात की उसकी मोमेंटम की, अभी हम बात करेंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके रिगार्डिंग. काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट 1/2 mv². तो हम बात करेंगे अभी 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2².
इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। दोनों साइड से m1 कॉमन निकाला तो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन निकाला v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 6.9.2 और इक्वेशन 6.9.3। Dividing this equation 6.9.3 and 6.9.2, we get v1 plus v1 dash is equal to v2 plus v2 dash. Dividing this both of this equation, we get the value of v1 plus v1 dash is equal to v2 plus v2 dash. Now multiply this equation 6.9.4 by m1 and adding it to 6.9.1. ओके तो ये जो 6.9.4 इक्वेशन है उसको m1 से मल्टीप्लाई करके जो 6.9.1 में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 प्लस m1v1 डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश प्लस m1v2 प्लस m1v2 डैश। That's why we get, by simplify of this, we get 2m1v1 plus in bracket m2 minus m1 v2 is equal to m1 plus m2 bracket over v2 dash. By simplify of this, we get the value of v2 is equal to v2 dash is equal to in bracket 2m1 over m1 plus m2 bracket over v1 plus in bracket m2 minus m1 over m1 plus m2 bracket over v2. Substituting this value of v2 dash in equation number 6.9.4, we get the value of v1 dash. v1 dash is equal to in bracket m1 minus m2 over m1 plus m2 bracket over into v1 plus in bracket 2m2 over m1 plus m2 bracket over v2. Now this equations 6.9.4 5 और 6.9.6 ये आपको याद रखना है। These are the equation of elastic collision in one dimension. तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा और वन डायरेक्शन में होगा तो आपको ये जो v1 डैश और v2 डैश का जो दो इक्वेशन है वो आपको याद रखने हैं। जब भी एग्जाम्पल कोलिजन का होगा तो उसमें इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन होगी, वन डायमेंशन में होगी, तो अभी आपको v1 डैश और v2 डैश के इक्वेशन में m1 m2 और v1 v2 के वैल्यू रखोगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश आपको मिलेगी। नाउ ये जो दो इक्वेशन है उसमें अभी हम दो स्पेशल केस की बात करेंगे। फॉर m1 इज इक्वल टू m2, अब यहाँ पे जो कोलिजन का केस है उसमें m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स व्हाट, दोनों जो भी बॉडी होगी जो ऑब्जेक्ट होगी उन दोनों का अगर मास सेम होंगे तो क्या होगा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन v1 डैश इज इक्वल टू v2 होगा। v1 डैश इज इक्वल टू v2 मतलब क्या, जो पहली बॉडी होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन की बाद की जो वेलोसिटी होगी वो दूसरे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जितनी होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, v1 डैश इज इक्वल टू v2 और v2 डैश इज इक्वल टू v1। जब भी दोनों बॉडी का मास सेम होगा तो इसके बेस पे हम क्या कहेंगे, दिस मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ कोलिजन बोथ द बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। ओके, तो जब भी कोलिजन होगी तब वो टाइम पे अगर m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो बोथ द बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। सेकंड कंडीशन है जब m2 इज मोर ग्रेटर देन m1, जब m2 जो बॉडी होगी वो m1 से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तब इन दिस केस m1 को समझो लाइटर बॉडी और m2 को समझो heavier body. In this case, the lighter body collides with the heavier body while moving in the same direction. Then m1 can be neglected comparing to m2. That's why we get the value of v1 dash is equal to minus v1 plus 2v2 and v2 dash is near about v2. तो यहाँ पे v1 लाइटर बॉडी है तो उसकी जो वेलोसिटी v1 डैश होगी वो कितने होगी, माइनस v1 प्लस 2v2 जितनी,
और जो हैवियर बॉडी होगी उसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही रहेगी. दिस shows that velocity of heavy body is almost unchanged. The velocity of lighter body is changed. In other words, heavier body does not respond to collision. मतलब ये जो कोलिजन है वो उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर दो बॉडी मतलब एक समझ लो ट्रक और दूसरी समझ लो साइकिल. ट्रक और साइकिल, साइकिल एकदम लाइटर वेट है, ट्रक है वो हैवियर बॉडी है. ट्रक और साइकिल दोनों एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके बीच में टकराव मतलब कोलिजन हो रहा है. तो जो ट्रक की वेलोसिटी है वो उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं. v2 डैश इज इक्वल टू v2. ओके, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा. लेकिन जो लाइटर वेट है मतलब के साइकिल, उसकी वेलोसिटी v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस 2v2 जितनी होगी. तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी बॉडी इज ऑलमोस्ट अनचेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी चेंजेस और हैवियर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कोलिजन. तो ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, साइकिल को ही पड़ेगा. सो हमने जो ये चैप्टर में जो डिस्कशन किया उसके जो की पॉइंट है, जो समरी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. If during the collision of two bodies the kinetic energy is conserved, the collision is said to be elastic. मतलब कि जो भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो वो कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती उसको इनइलास्टिक कोलिजन हम बोलेंगे. सेकंड पॉइंट, अ बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v1 undergoes an elastic collision with body mass m2 moving with velocity v2 in the direction of v1. देन ये जो दो इक्वेशन है ये जो हमको याद रखने हैं, v1 डैश का इक्वेशन क्या बनेगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2. ये v1 डैश का इक्वेशन. वैसे v2 डैश का इक्वेशन क्या आएगा, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2. ये इक्वेशन हमको याद रखने हैं. इन केस ऑफ कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन, अभी हमने जो ऊपर का जो इक्वेशन की बात करी वो इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात की थी, ये जो इक्वेशन है. लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन का जो केस होगा, इन केस ऑफ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉडीज कोलाइडिंग मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन विथ कॉमन वेलोसिटी v, देन इन दिस केस जो v का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2. ये जो दो इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन का और नॉन इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक कोलिजन का, तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल. आई होप इन दिस लेक्चर you understand very well. Thank you very much.